Hello everyone, this is the revision third of chapter 4 distribution of ocean and continents. In this video we will revise two concepts, the plate tectonic and the movement of Indian plate. So let's start the topic, plate tectonic theory. Actually, after the post drift theories means the convection current theory, sea floor spreading theory, ocean floor configuration, after explanation of these theory in 1967, Mackenzie, Parker and Morgan, these three scientists independently collected the available idea and came out with another fact. Once again I am repeating, in 1967, Mackenzie, Parker and Morgan, these three scientists independently collected the available data or ideas. Available data given by the sea floor spreading, ocean floor configuration, convection current theory. So by these theory, whatever the data is given, these three scientists collected these idea and came out with another fact. That concept is termed as plate tectonic. A tectonic plate. So first of all the question arises in our mind that what the meaning of tectonic plate. A tectonic plate also called lithospheric plate is a massive irregular shaped slab of solid rock. यानी टेक्टोनिक प्लेट जिसे हम लिथोस्फेयर का पार्ट भी कह सकते हैं, यह एक मैसिव यानी बहुत हैवी इरेगुलर शेप जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती स्लैब सॉलिड रॉक की एक स्लैब जैसी है, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन लिथोस्फेयर। यह जो प्लेट है यह कॉन्टिनेंट प्लस ओशन दोनों ही लिथोस्फेरिक पार्ट से बनी हुई होती है, यानी कॉन्टिनेंट के नीचे भी प्लेट्स हैं और ओशंस के नीचे भी। प्लेट मूव्स horizontally over the asthenosphere, the weaker zone that we already discussed, the weaker zone where the existence of magma is there. So the weaker zone, asthenosphere, these plates move horizontally over the asthenosphere. एस्थनोस्फेयर एक लिक्विड एरिया है जहाँ पर ये सॉलिड रॉक्स की बड़ी बड़ी स्लैब्स हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। The lithosphere includes the crust and top mantle with its thickness ranging varies from between 5 to 100 km in oceanic parts and about 200 km in the continents। यानी कि continents में इन प्लेट्स की जो डेप्थ है वो 200 किलोमीटर्स के आसपास होती है और ओशंस में दे वेराइज फ्रॉम 5 to 100 किलोमीटर्स। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से कि ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि कॉन्टिनेंट क्रस्ट 200 किलोमीटर तक की हो सकती है। ये वेराइज करती है एरिया वाइज, लाइक माउंटेन्स की क्रस्ट थिक होगी इन कंपैरिजन टू प्लेटो और प्लेटो की क्रस्ट थिक होगी इन कंपैरिजन टू प्लेन। ए प्लेट में भी referred to the continental plate or oceanic plate depend on which of the two occupy a larger portion of the plate। यानी कि प्लेट को हम कॉन्टिनेंट प्लेट कहेंगे या ओशनिक प्लेट कहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि वह कौन से पार्ट पर लार्जली स्प्रेड है। यानी अगर प्लेट का मैक्सिमम पार्ट ओशनिक है तो वह ओशनिक प्लेट होगी, और अगर प्लेट का मैक्सिमम पार्ट कॉन्टिनेंट के नीचे है तो वो प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट होगी। पैसिफिक प्लेट इज़ लार्जली एन ओशनिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट एक ओशनिक प्लेट है क्योंकि कम्प्लीटली पैसिफिक ओशन के नीचे प्लेट है वो एक ओशन के नीचे ही है, वहाँ लैंड का कोई पार्ट नहीं है। वेयर यूरेशियन प्लेट में बी कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट प्लेट। यूरोप और एशिया के नीचे जो कंप्लीट प्लेट है दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो पूरा एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वहाँ ओशन का पार्ट नहीं है। The theory of the plate tectonic propose that the earth lithosphere is divided in 7 major। The important term, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो पूरी वर्ल्ड है उसका लिथोस्फेयर 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड है, एंड देर आर सम माइनर प्लेट्स ऑल्सो। 7 मेजर हैं
और कुछ माइनर प्लेट्स हैं. सो लेट्स सी दीज प्लेट्स and this is very important and need to learn. Young fold mountain ridges, trenches and all the faults surrounding the major plates. First plates, major plates, 7 major plates में first plate है अंटार्कटिका and the surrounding oceanic plate. अंटार्कटिका plate और उसके आसपास जितना भी oceanic area है उसकी plate. You can see in this area the Antarctica. This is Antarctica plate, Antarctica and the surrounded area. This is one major Antarctica plate. Second, North America. This is North America plate, the entire from here. This is the North America plate, entire plate is North American plate. Next, South American plate. You can see the South American plate, entire area. This is entire plate is South American plate. Then Pacific plate, Pacific Ocean. This is the Pacific plate. You can see the Pacific plate. Indian, Australia, New Zealand plate. These are major plates. Once again I am repeating. India, New Zealand and Australia. So some part of India, here you can see this is the Indo-Australian plate. India, this is entire Indo-Australian plate. India, Australia, New Zealand. So the entire area of Indo-Australian plate. Then Eurasian, African and other plates. So in this way we can say that there are 7 major plates. Then some of minor plates also, like Cocos, Nazca, Arabian, Philippine. These are some minor plates, but these are also as well important. You can see these plated. This is Nazca, Caribbean plate, Scotia plate, Caroline plate, Philippine plate. So you also need to learn the area of these minor plate also. Next, there are some plate boundaries, because these plate move horizontally, so they form 3 plate boundaries. There are 3 plate boundaries: divergent, convergent and transform. There are 3 plate boundaries: divergent, convergent and transform. We will discuss one by one. Divergent boundary, where new crust is generated at the plates pull away from each other. In a simple language we can say, when 2 plates move from each other, like one plate is there, second plate is there, and when they move away from each other, जब वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, this is called divergent boundary. This is called actually divergent movement, and they form divergent boundary. The side where the plate move away from each other are called spreading side. जिस जगह से दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं उसे बोलते हैं spreading side. The best known example of divergent boundary, mid-Atlantic ridge. American plate are separated from the Eurasian and African plate. Second boundary, that is the convergent boundary. In a simple language we can say convergent means like these 2 plates, when they come to each other, this is called convergent movement, and the boundary called as convergent boundary. The crust is destroyed as one plate divide under another, because when this kind of movement held, this is one plate, this is second plate, when they come to each other, so the light plate beneath the heavier plate, and this is a sinking of the plate under the subduction zone. यानी जो लाइट प्लेट का मटेरियल होता है वो सबडक्शन जोन के अंदर चला जाता है. सो दिस इज अ
This is called as a convergent boundary and also called as a destroying movement of the plates. There are three ways in this convergence. इस convergence के तीन तरीके होते हैं. Between an oceanic and continent plate, ऐसा convergence ocean या continent plate के बीच में हो सकता है. Between two oceanic plates, two oceanic plates के बीच में हो सकता है. एंड बिटवीन टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स, दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स की, यानी कि जो दो प्लेट होंगी वो कोई दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स हो सकती हैं, दो ओशनिक प्लेट्स हो सकती हैं, या एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंट प्लेट भी हो सकती हैं. द थर्ड प्लेट बाउंड्री दैट इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वेयर द क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड एट द प्लेट स्लाइड, यानी ना तो कन्वर्जेंट बाउंड्री की तरह प्लेट डिस्ट्रॉय होती है और ना ही डाइवर्जेंट बाउंड्री की तरह न्यू प्लेट का फॉर्मेशन होता है. सो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर द प्लेन ऑफ द सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज, यानी जहाँ ना तो नई बाउंड्री बनती है और ना ओल्ड प्लेट डिस्ट्रॉय होती है. इस काइंड के मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. दिस इज अ न्यूट्रल मूवमेंट एक्चुअली. एट द रेफ्शन डू नॉट टेक अलॉन्ग द एंटायर क्रीज एट द सेम टाइम. देयर इज अ differential movement of the portion of the plate away from the axis of the earth. Rates of the plate. Different plate move on a different rate. The Arctic ridge has the slowest. Need to learn the line. The Arctic ridge slowest. Arctic ridge की जो प्लेट है वो slowest movement को शो करती है, जबकि ईस्ट पैसिफिक जो राइज है नियर ईस्टर आइलैंड, द साउथ पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर टू द वेस्ट चिली हैज़ अ फास्टेस्ट रेट मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर. यानी आर्कटिक रिज सबसे स्लो रेट वाली प्लेट है, जबकि साउथ पैसिफिक इसके पास सबसे हाई या फास्टेस्ट मूवमेंट वाली प्लेट है. देन वी सी द फोर्स फॉर द मूवमेंट, यानी प्लेट्स जो मूव होती हैं उसके लिए फोर्स कहाँ से आता है. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी. सो द हीटेड मटेरियल राइज टू द सरफेस. जो हीटेड मटेरियल है दैट द मॉल्टन मटेरियल, वो सरफेस पर पहुँचता है. स्प्रेड एंड बीइंग टू कूल, सरफेस को स्प्रेड करता है, मूव करता है, प्लेट को मूव करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जैसे ही वो ठंडा होने लगता है इट टेंड टू सिंक, वो नीचे की साइड आने लगता है और डीपर डेप्थ में चला जाता है. फिर वापस से वहाँ पर उसको हीट मिलती है और वो वापस से ऊपर आता है, और दिस इज़ रिपीटेड इन अ साइकिल. ये पूरा वर्क या साइक्लिक फॉर्म में रिपीट होता रहता है, और प्लेट को मूव करने के लिए फोर्स अवेलेबल होता है, या जितना रिक्वायर्ड फोर्स है उसको मिलता रहता है. नेक्स्ट विल सी द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, यानी इंडियन प्लेट का मूवमेंट कैसे हुआ है. द इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडियन प्लेट में क्या क्या इंक्लूड है. पेनिनसुलर इंडिया यानी गोंडवाना का पार्ट एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन. द सबडक्शन जोन अलॉन्ग द हिमालय फॉर्म the northern plate boundary in the form of continent conversion. The most important line of the movement of the Indian plate, हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ, जो नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री है उससे हुआ है, और किस फॉर्म में हुआ है. कॉन्टिनेंट, क्योंकि यूरोप और एशिया, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दीज टू आर द कॉन्टिनेंट प्लेट. ये दोनों ही प्लेट कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंट प्लेट है. और इन दोनों ही प्लेट के कन्वर्जेंस यानी एक दूसरे के पास आने से किसका फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय. सो हिमालय फॉर्म ड्यू टू द कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बाउंड्री. नेक्स्ट, इंडिया का जो मूवमेंट है या इंडियन प्लेट का मूवमेंट है, इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी. यानी इंडिया का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, यू कैन सी इंडिया का पहले जो लोकेशन था वो इस तरीके से था. अब धीरे धीरे जो इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट, जो ये नॉर्थ में मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है, दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्टेड अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो.
at the time when Pangea broke. पेंजिया भी नियर अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो पहले ब्रेक हुआ था, स्प्लिट हुआ था, और तभी से इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है. डिफरेंट पीरियड्स में, यानी डिफरेंट एज वाइज, डिफरेंट टाइम वाइज, डिफरेंट इंडियन प्लेट का मूवमेंट डिफरेंट फॉर्म में होता गया, और ये आज अपनी प्रेजेंट कंडीशन में हमें एग्जिस्ट करता है. सो नियर अबाउट 17 मिलियन ईयर अगो इंडिया का कंडीशन ऐसा था, then 55 million ago, then 38, then 10 million ago, and this is the today's India. So in this way we can say the movement of Indian plate. Basically, from 14 million year ago and thereafter the event of formation of Himalaya took place. यानी 14 मिलियन ईयर अगो जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, उसमें आज से लगभग 14 ईयर अगो दो प्लेट के कन्वर्जेंस मूवमेंट से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. सो द हिमालय एज इज 14 मिलियन ईयर अगो, एंड देयर आफ्टर द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय टुक प्लेस. हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. साइंटिस्ट बिलीव द प्रोसेस इज स्टिल कॉन्टिन्यू एंड द हाइट ऑफ द हिमालय इज राइजिंग इवन दिस डेट. साइंटिस्ट आज भी ऐसा मानते हैं कि जो मूवमेंट है प्लेट का वो आज भी नॉर्थवर्ड है, और हिमालय की जो हाइट है वो आज भी इंक्रीज हो रही है. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर. Thank you. In next two video we will revise chapter 5 minerals and rocks.